السلام علیکم۔ 14 سال کی عمر میں دلہن بنی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ گاؤں کی سبھی سہیلیاں مجھ پر فدا ہو رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنے دلہے کو نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پاس شادی کے بعد دلہے کو شیشے میں دیکھنے کی رسم تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی میں نے اپنے دلہے کو دیکھنے کے لیے شیشے میں نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ دلہا تو میری بہن کا ہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ہی گھر والے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کر سکتے ہیں۔ مجھے جان بوجھ کر میرے گھر والوں نے ایک ایسی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ جس سے میرا پورا وجود بھسم ہو گیا تھا۔ میں جو اپنے دل میں ہزاروں ارمان سجا چکی تھی، شادی کی پہلی رات ہی وہ سب چکنا چور ہو گئے تھے، کیونکہ میرا شوہر تو میری ہی سگی بہن کا۔ میں زرق برق لباس پہنی دلہن بنی بہت ہی خوش تھی۔ میرے آگے پیچھے بیٹھی سہیلیاں گیت گنگنا رہی تھی۔ گاؤں میں یہ رواج تھا کہ دلہن کو ہفتے بھر پہلے سے ہی دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا اور اسے کوئی بھی کام نہ کروایا جاتا، اور گاؤں کی ساری ہی لڑکیاں شام ہوتے ہی دلہن کے گھر جمع ہونا شروع ہو جاتی اور میٹھی سی آواز میں گانے گانے لگتی۔ گاؤں میں سبھی لوگ بہت مل جل کر رہتے تھے اور ایک دوسرے سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ سب لوگ الگ الگ ہیں، ایسا محسوس ہوتا کہ سب ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں۔ میری شادی کا سن کر بھی سارے ہی گاؤں کی لڑکیاں خوشی خوشی جمع ہونے لگی تھی، لیکن میں بہت حیران تھی کیونکہ میری بڑی بہن ابھی تک شادی میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اماں سے پوچھا بھی کہ باجی کہاں ہے، اور اماں یہی کہتی رہی کہ بس آنے ہی والی ہوں گی۔ میں جب بھی اماں سے اپنے دلہے کے بارے میں پوچھتی تو اماں یہی کہتی کہ گاؤں کی لڑکیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے ہونے والے دلہا کے متعلق سوال پوچھیں۔ شادی کے بعد جب تیری ساس شیشہ سامنے رکھے گی تو اس میں خود اپنے شوہر کو دیکھ لینا، لیکن ابھی سے اگر اپنے دلہا کے بارے میں سوال کرے گی تو چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی اور تو دلہن بن کر اچھی نہیں لگے گی۔ 14 برس کی کچی عمر میں دلہن بننے والی میں ایک گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی، جسے اس بات پر یقین تھا کہ بے باک گفتگو کرنے سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور دلہن اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ میرے لیے تو شادی ایک حسین سپنے جیسی تھی۔ چڑھتی جوانی اور جذبات کی روانی میں میری شادی ہو رہی تھی۔ صرف اور صرف پیار اور محبت تھا اور اپنی جنسی خواہشات کی تسکین تھا۔ نہ مجھے شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کے بارے میں اندازہ تھا اور نہ ہی مجھے کسی نے اس بارے میں زیادہ کچھ بتایا تھا۔ ساری لڑکیاں گانا گاتے گاتے مجھے میرے دلہا کے حوالے سے چھیڑتی تو میرا چہرہ شرم سے گلنار ہو جاتا۔ میرے چہرے پر اتنے رنگ بکھر جاتے کہ سبھی عورتیں زور زور سے ہنسنے لگتی، لیکن میری ماں کے چہرے پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی دکھ انہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ اور جب یہی بات میں نے اماں سے پوچھی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اپنی چھوٹی سی گڑیا کو رخصت کرنے سے بڑا دکھ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ میری لاڈلی چڑیا میرے آنگن سے چلی جائے گی تو میرا گھر خالی ہو جائے گا۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی تو میرے ساتھ ساتھ گاؤں کی تمام سہیلیاں بھی رو پڑی، کیونکہ اماں نے بتایا تھا کہ میں شادی کر کے دوسرے گاؤں جا رہی ہوں۔ میری بہن بھی شادی کر کے دوسرے گاؤں ہی گئی تھی اور وہ بھی سالوں میں ایک دفعہ آتی تھی، اور اب میں بھی شادی کر کے کسی دوسرے گاؤں ہی جا رہی تھی۔ شاید میں بھی اماں سے ملنے سالوں بعد ہی واپس آتی۔ مجھے اپنی بڑی بہن کی یاد رہ رہ کر آ رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک میری شادی میں شریک ہونے کے لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے یوں دلہن بنے بیٹھے 4 دن ہو گئے تھے اور اگلے 3 دن بعد میری بارات آنی تھی۔ میں بار بار سب سے اپنی بہن کا پوچھ رہی تھی، لیکن اماں نے بتایا کہ اس کے گاؤں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گاؤں سے نہیں نکل پائی، لیکن شادی تک وہ ضرور آ جائے گی۔ اماں نے مجھے پوری طرح سے مطمئن کر دیا تھا۔ میرے گاؤں کے کچے سے گھر میں ایک کمرے کو مخصوص کر کے میرے لیے سجایا گیا تھا، جہاں میں روز رات کو سونے لیٹتی تو آنے والی زندگی کے حسین خوابوں کے سفر میں نکل پڑتی۔ ایک خوبصورت سا نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف بڑھتا چلا آتا اور مجھے رخصت کروا کے اپنے ساتھ بادلوں کی سیر پر لے جاتا۔ میں اس حسین خواب کو ہر رات جی رہی تھی اور بے صبری سے منتظر تھی کہ کب میرے خوابوں کا شہزادہ حقیقت میں میرے گھر ڈولی لے کر آئے گا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری زندگی میں تو ایک طوفان آنے والا تھا اور میں اس طوفان سے بے خبر اپنے ہی سپنے بنتی چلی جا رہی تھی۔ جس شادی کو لے کر میں اتنی زیادہ خوش تھی اور میرے دل میں جذبات پنپ رہے تھے،
वो शादी तो महज मेरी जिंदगी की बर्बादी थी। मेरे अब्बा ने शादी की तैयारियों में कोई कसर न छोड़ी थी और अपनी इस्तात के मुताबिक उन्होंने गांव की जरूरियात के हिसाब से तमाम सामान देने की पूरी कोशिश की थी। 3 दिन कहाँ पर लगा कर उड़ गए थे मुझे पता ही नहीं चला था और अब शादी का दिन सर पर आ गया था। तब मुझे माँ बाप को छोड़ने का दुख सता रहा था। मैं अपने अब्बा से लिपटकर इस कदर रोई कि सभी लोग रोने लगे। अब्बा भी रोते हुए मुझसे कहने लगे कि बेटी अपने बाप को माफ कर देना। मैं तो चाहता था कि जिंदगी की सारी खुशियां तेरे दामन में भर दूं, लेकिन शायद तेरे अब्बा की इतनी औकात नहीं थी कि वो तुझे सब कुछ अच्छा दे पाता। तेरा बाप नसीबों के आगे हार गया है। अब्बा ने जैसे ही मेरे आगे हाथ जोड़े तो मैं परेशान हो गई और उनके हाथों को चूमने लगी। मुझे अब्बा से किसी किस्म की कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी। मैं उनकी छोटी लाडली बेटी थी। वो जब भी घर में दाखिल होते तो जरीना जरीना कहते सारे घर को सर पर उठा लेते। जब तक मैं उन्हें नजर न आती उन्हें तसल्ली न होती। और आज मेरी रुखसती के दिन वो जिस तरह आंसू बहा रहे थे, हर आंख अश्क बार हो गई थी। 3 दफा कबूल है कहकर मैं अपने माँ बाप के लिए पराई हो गई थी कि इतने में मुझे अपनी बाजी का चेहरा नजर आया, जिन्होंने मुझे अपने सीने से लिपटा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने नाराजगी से मुंह फेर लिया था। इतने दिन निकाल कर वो मेरी रुखसती के वक्त घर आई थी। मेरी नाराजगी को देखते हुए वो मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि बहुत चाह कर भी मैं ना आ सकी। मैं बहुत मजबूर थी। अगर मेरे बस में होता तो मैं सबसे पहले उड़कर तेरे पास पहुंच जाती। मैंने बाजी से कहा कि रहने दो, तुम्हें अपना ससुराल इतना अजीज है कि अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारियों को देखने भी ना आई। बाजी धीरे धीरे रोने लगी थी कि जब मैंने खुद ही आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। मैं जानती थी कि उनके ससुराल वाले कैसे लोग हैं और वो बाजी को किसी सूरत में हमारे घर नहीं आने देते थे, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो मेरी शादी पर भी अपना घटियापन नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहन अपनी शादी के अगले ही दिन से अपने ससुराल वालों के जुल्मों सितम का शिकार थी। वो लोग ना उसे अपने घर आने देते और ना ही किसी से राब्ता करने देते, सिर्फ और सिर्फ काम करवाते और उसे घर में नौकरानियों की तरह रखते। मेरी बहन बहुत मुश्किल से अपना ससुराल निभा रही थी, क्योंकि हम गांव वालों में वापसी का कोई रवाज नहीं था। बेटी शादी होकर अपने ससुराल जाती थी और मर कर ही वहाँ से निकलती थी। तलाक या खुला जैसे लफ्ज को सिर्फ और सिर्फ एक गाली समझा जाता था, और अगर किसी औरत का मर्द उसे छोड़ देता तो उस औरत की जिंदगी सारे गांव वाले अजीरन कर देते। उसे मनहूस तस्वुर किया जाता और किसी शादी ब्याह और खुशी की तकरीब का हिस्सा न बनने दिया जाता। मेरी बहन भी बहुत मजबूरी में ही उस शादी को जैसे तैसे निभा रही थी। हर आने वाले दिन में उस पर कोई नया जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया जाता। अक्सर ही अब्बा कहते कि बाजी के हवाले से फैसला करते वक्त उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बारी में अब्बा उसी गलती को दोबारा से दोहराएंगे। जैसे जैसे रुखसती का वक्त करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अपनों को छोड़ने का गम एक तरफ और नई जिंदगी को लेकर दिल में भड़कते जज्बात एक तरफ थे। अब्बा ने कुरान शरीफ के साय में मुझे रुखसत किया था। मैं अपनी माँ, बहन और सारी सहेलियों से मिलकर डोली में बैठ गई थी और काफिला दूसरे गांव की तरफ रवाना हो चला था। मैंने अभी तक अपनी दुल्हा को नहीं देखा था और मैं ख्यालों ही ख्यालों में उसका हसीन चेहरा अपनी आंखों में समाई जा रही थी। मैं गांव की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नरमो नाजुक से हाथ पांव और गोरी चिट्टी रंगत में मेरा कोई सानी नहीं था। मैं जब गांव के कुएं से पानी भरने जाती तो गांव के लड़के मेरी एक नजर देखने को बेताब रहते। 14 साल की उम्र में ही खुदा ने मुझे इतनी खूबसूरत जिसामत से नवाजा था कि जिसकी आंख मेरी तरफ उठती वो पलक झपकना भूल जाता। लंबे कद और पुरकशिश जिसामत के साथ में हर एक का दिल मोह लेती थी। इसीलिए मुझे यकीन था कि अब्बा ने मेरे लिए कोई शहजादा ही ढूंढा होगा, क्योंकि मैं 12 साल की हुई थी जब से मेरे लिए गांव के लड़कों के रिश्ते आना शुरू हो गए थे। काफी देर तक डोली का सफर जारी रहा और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गई। हम जहां रहते थे वहां करीब करीब ही छोटे छोटे गांव आबाद थे और मेरी शादी भी अपने गांव से करीब ही एक गांव में हुई थी। मैं घूंघट के अंदर चेहरा किए कुछ औरतों के सहारे एक घर में दाखिल हो गई थी। मेरे इर्द गिर्द अजीब सा शोर हो रहा था। औरतों की कहकों की आवाजें और तरह तरह की बातें मुझे बहुत घबराहट में मुब्तला कर रही थी।
रस्म के मुताबिक आई हुई सारी औरतों को मेरे कान में आकर मुझे दुआ देनी थी और उसके बाद मेरी सास एक शीशा लाकर मेरे सामने रखती और मेरे शौहर को मेरे बराबर में बिठाया जाता और हम दोनों उस शीशे में पहली दफा एक दूसरे का चेहरा देखते। एक एक करके गांव की औरतों ने मेरे कान में जुमले कहने शुरू कर दिए थे और मैं शर्म से लाल पड़ती जा रही थी। वो सब मुझे ऐसी दुआएं दे रही थी कि जो मैं बयान भी नहीं कर सकती थी। एक औरत कहने लगी कि तेरा शौहर ऐसे तुझे सताए कि पलंग टूट जाए, तो एक कहने लगी कि तेरे घर बच्चों की लाइन लगी रहे। गर्ज मौका की मुनासबत से हर एक ने मुझे तंग करते हुए ही दुआ दी थी। मेरी सास ने जब औरतों के कुछ जुमले सुने तो उन्होंने उस रस्म को यही रोक दिया और शीशा लेकर मेरे आगे रख दिया। मैंने अभी तक अपने किसी भी ससुराल वाले को नहीं देखा था क्योंकि मेरे चेहरे पर एक घूंघट को लंबा करके निकाला गया था। थोड़ी ही देर में मुझे अपनी बराबर वाली चौकी पर किसी मर्दाना वजूद का एहसास हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। जज्बात की शिद्दत से मैं कांप रही थी। जब भी मुझे एक आवाज आई कि शीशे के अंदर अपने शौहर का चेहरा देख लो। बहुत ही बेचैनी के आलम में जैसे ही मैंने शीशे में नजर डाली तो एक ही लम्हे में मेरी जान निकल गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं और मेरी बहन जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी उसने ही मेरे पेट में खंजर घोंप दिया था। मेरे तो वहम और गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। शीशे में नजर डालने पर जो चेहरा मुझे नजर आया था मैं उस चेहरे को बहुत अच्छे से पहचानती थी। मेरे घर वालों ने मुझसे जानबूझकर ये बात छुपाई थी कि मेरी शादी किससे हो रही है और मेरी शादी दरअसल सिर्फ और सिर्फ मेरी बर्बादी थी जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने माँ बाप और मेरी बहन थी। मैं अचानक ही घूंघट हटाकर खड़ी हो गई थी। गाँव की सब औरतें जो वहाँ मौजूद थी मुझे हैरत से देखने लगी। जैसे ही मैंने निगाहें उठाकर सामने देखा तो दूर मेरी बहन भी खड़ी थी। मैंने फौरन ही बिना सोचे समझे शोर मचाया और कहने लगी कि बाजी तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपना ये शराबी जेठ ही मिला था मेरी शादी करवाने के लिए? ये ना सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ा है बल्कि इर्द गिर्द के सारे गांव में ही उसके नशे के किस्से मशहूर हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बहन के चेहरे का एकदम ही रंग उड़ गया था और वो मुझे इशारे से कहने लगी कि खामोश हो जाओ। लेकिन मैं कैसे खामोश हो सकती थी? मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और वो भी मेरी बहन की वजह से। गांव की औरतों ने फौरन ही मेरी सास से कहा कि ये तुम किस हराफा को ब्याह कर लाई हो जो शादी के दिन ही बड़ी महफिल में अपने शौहर का तमाशा बना रही है। इससे पहले कि मैं गांव की औरतों को कुछ कहती मेरा शराबी शौहर मुझे गर्दन से पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले आया था। मेरी बाजी भी पीछे पीछे आने ही लगी थी कि जब मेरे शौहर ने अचानक ही कमरे का दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया और मेरे करीब चला आया। मेरे पास आते ही उसने मेरे दुपट्टे को खींचकर दूर फेंका और मेरे चेहरे पर 2 जनाटेदार थप्पड़ जड़ दिए। उसके मुंह से उस वक्त भी शराब की बू आ रही थी कि यकीनन वो अभी भी नशे में था। उसकी उम्र लगभग कोई 55 साल के करीब थी। गांव में कोई भी उसे अपनी बेटी देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसकी बदनामी तो दूर दूर के गांव तक फैली हुई थी। उसने थोड़ी ही देर में मुझे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया और मेरे ऊपर हावी हो गया। वो मेरे जज्बात का एहसास किए बगैर अपनी प्यास बुझा रहा था और मेरे जिस्म पर अपने निशानात छोड़ता जा रहा था। मैं जिस शादी की रात को लेकर हजारों सपने सजाए इस घर में आई थी वो रात मेरी आहों और सिसकियों में कतरा कतरा बीत रही थी। मैं हर गुजरते लम्हे के साथ शिद्दत से अपनी मौत की दुआ मांग रही थी लेकिन ये रात तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर पल मेरी अजियत बढ़ती जा रही थी और मेरा शौहर इस अजियत से मुस्तकिल मजे ले रहा था। मेरी हर सिसकी पर वो खुश होता और मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाता। थोड़ी थोड़ी देर से वो शराब की बोतल भी खाली करता जा रहा था। पूरी रात में वो तकरीबन 2 शराब की बोतलें खाली कर चुका था। सूरज तुलू होने से पहले वो इस कदर नशे में धुत हो चुका था कि खुद ही से फर्श पर गिर गया था। लेकिन उस वक्त तक मेरी हालत इतनी अबतर हो चुकी थी कि मैं हिलने जुलने की काबिल भी ना रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं रोते रोते सो गई और जब सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे का दरवाजा बज रहा था। थोड़ी देर तो मैं नजरअंदाज करके अपनी जगह साकत पड़ी रही लेकिन जब दरवाजा बजने में शिद्दत आई तो मैंने मजबूरन उठकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर अपनी बहन पर पड़ी तो मैं तेजी से दरवाजा बंद करने लगी।
लेकिन मेरी बहन उसी वक्त दरवाजा धकेल कर अंदर चली आई। उसने एक नजर नशे में धुत फर्श पर पड़े अपने जेठ पर डाली और दूसरी नजर मेरे चेहरे पर डाली, जिस पर जख्मों के इस कदर निशानात थे कि शायद मेरा चेहरा भी पहचानने के लायक नहीं रहा था। मेरी बहन मेरे कदमों में बैठ गई और मुझसे माफी मांगने लगी, लेकिन मेरे पास उसे माफ करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो सब जानबूझकर किया था। वो रोते हुए कहने लगी कि उसने बहुत मजबूरी में ये कदम उठाया है, क्योंकि उसकी सास और उसके शौहर ने उस पर बहुत दबाव डाला था। उसकी बात सुनकर मैंने नफरत से मुंह फेर लिया और कहा कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके अब तुम सुकून से अपने घर को आबाद रखना। बाजी रोते हुए कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है। अगर मैं तुम्हारी शादी अपनी जेठ से ना करवाती तो ना सिर्फ ये कि ये लोग मुझे तलाक दिलवा देते, बल्कि मेरे बच्चों को भी मुझसे जुदा कर देते और मैं अपनी औलाद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। मैंने नफरत से अपनी बहन को देखते हुए कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद जैसी नहीं थी? मैं तुम्हारी छोटी बहन थी। मैंने तुम्हें हमेशा माँ की जगह पर ही देखा और तुमने मुझ पर, अपनी औलाद को मुझ पर इस कदर फोकियत दी कि मेरी पूरी जिंदगी एक आग में झोंक दी, जिसमें सारी जिंदगी मुझे जलकर भस्म होते रहना है। बाजी ने मेरे पांव पकड़ लिए और कहा कि उन्होंने बहुत मजबूरी में ये कदम उठाया है। जब उन्होंने अम्मा अब्बा को ये बताया कि उनके शौहर उनको तलाक दे देंगे, तो अम्मा अब्बा ने यही फैसला किया कि वो बाजी को तलाक की तोक से बचाने के लिए मेरी कुर्बानी देंगे। मैंने बाजी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप खुश हो जाएं कि आपको तलाक नहीं होगी और अब आपका घर आबाद रहेगा, लेकिन ये बात भूल जाएं कि अब आपकी कोई छोटी बहन भी है। अब मैं रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपकी जेठानी हूँ और इस रिश्ते में बड़े होने की हैसियत से मैं आपको हुक्म देती हूँ कि आप आइंदा मेरे सामने ना आएं। मैंने अपनी बात कहकर रुख फेर लिया था और मेरी बहन रोते हुए कमरे से चली गई थी। मेरे माँ बाप ने अपनी एक बेटी का घर बचाने के लिए अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया था। मैं जानती थी कि बाजी के ससुराल वालों का ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला कभी न खत्म होने वाला है। मैं एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांटे थे। 14 साल की उम्र में मैं एक 55 साला शराबी के तशद्दुद का शिकार होती हर रात सिसकती थी। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया कि जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और मैंने इस बात का खुद से अहद कर लिया कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी को अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। गांव की फजूल रस्म रवाज और जंग आलूद सोच के साथ मैं अपनी बेटी की परवरिश नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं उस पर किसी शराबी का साया पड़ने दे सकती थी। मैंने अपनी बाजी का चेहरा देखना छोड़ दिया था और अपने माँ बाप के घर भी पलटकर कभी नहीं गई थी। एक दफा मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए आए तो मैंने उनसे मिलने के लिए भी इनकार कर दिया था। मैं एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ समझौता था, और जिस दिन मेरी बेटी मेरी गोद में आई तो मैंने उसी दिन एक मंसूबा बनाया और आने वाले कुछ ही हफ्तों में एक रात अपना गांव और शोहर छोड़कर फरार हो गई। मेरी बाजी ने अपने बच्चों के लिए मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था और मैं अपनी बेटी को उसी जहन्नुम से निकालकर अपने साथ ले जा रही थी। मुझे भी इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मेरे इस तरह फरार होने पर वो लोग मेरी बहन के साथ क्या सलूक करेंगे। जिस तरह मेरी बहन ने खुद गर्ज होकर अपने बच्चों के मफाद के बारे में सोचा था, मैंने भी उसी तरह अपनी बच्ची के बारे में सोचा। रात के अंधेरे में ही मैं गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी में सवार होकर काफी दूर निकल आई थी और अब मुझे अपने लिए नए रास्ते और मंजिल तलाश करनी थी।